Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the class of accounting. This is your class for your second year intermediate and in which you people will be able to grasp the new chapter. That will be your partnership dissolution. This is the second last chapter and hope so that the concepts are very much cleared. If you have gone through the previous chapters like partnership formation and then you can say retirement, so this chapter will be more easier for you. So let's start today's question. Okay. Yes. Yes, girls, this is your problem number 3 available on your book page number 206. This is on your book page number 206. Okay, so this is your problem number 3, which is on your book page number 203. Book page 206. It's your new edition of second year accounting intermediate. Now let's start towards the question. You have to start the question from the first point. P and S are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1 is to 1. So the ratio of the partners is 1 is to 1. Their balance sheet as under. We have cash 30,000, other assets 100,000, and on the equity sides we have accounts payable and then capitals. Okay, so now yes. Now we will decide, proceed towards the adjustments. They decided to dissolve the partnership. Here, all the partners are agree to dissolve the partnership. So when the partners are agree to dissolve the partnership, it means all the assets and liabilities of the firm uh, need to be closed. Okay, then requirement part, we have make entries in the journal for the dissolution considering the following transaction. Number one, we have Mr. P taken over some of the other assets costing 15,000. Mr. P is the partner. This is Mr. P. Okay, wait. Alhamdulillah. Sorry guys. Mr. P taken over some of the other assets costing 15,000. Is Mr. B is the partner and he is taking the other assets 15,000. अदर एसेस की कॉस्ट 100,000 है, जिसमें से हमारे पास मिस्टर पी ले रहे हैं 15,000 का अदर एसेस. ठीक है, अच्छा जी. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री. हम अदर एसेस हमारी फर्म से जा रहे हैं, तो इसलिए हम अदर एसेस को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, ट्रांजेक्शन शो कर रही हूँ आप लोग को. अदर एसेट्स हमारी फर्म से जा रहे हैं, सो एसेट्स की नेचर, क्योंकि हमें ऐसे हर चीज़ को, जितने भी नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं पार्टनरशिप को क्लोज करते वक्त, हमें उन्हें फर्म से ख़त्म करना है. ठीक है, सो हमारे पास अदर एसेट्स जो लिए हैं मिस्टर पी ने ले लिए हैं, और कितने के लिए हैं, 15,000 रुपये के ले लिए हैं. सो 15,000 ऑफ द अदर एसेट्स विल बी गॉन, और हमारे पास लिए किस पार्टनर ने है, मिस्टर पी ने. अच्छा, मिस्टर पी का कैपिटल डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि मिस्टर पी ने अपने कैपिटल में से परचेजिंग करी होगी ना, सो डेफिनेटली उसका कैपिटल अफेक्ट होगा. क्लियर, तो ये बात अपनी जहन में रखिएगा. ही हैज़ टेकन ओवर सम ऑफ द अदर एसेट्स, उसने जो अदर एसेट्स 15,000 के लिए हैं, वो उसने अपने कैपिटल में से परचेजिंग की है. डेफिनेटली उसका कैपिटल अफेक्ट होगा. द कैपिटल ऑफ मिस्टर पी विल बी डेबिटेड विद 15,000. This is your first transaction. Okay, then number 2, remaining other assets realized cash 120,000. हमने जो बच गए थे अदर एसेट्स, अब बचे कितने थे, रिमेनिंग का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे. हमारे पास 100,000 क्वेश्चन में गिवन है. वेट, 100,000 आपके पास क्वेश्चन में है. 15,000 वाले जो हैं वो मिस्टर पी ने ले लिए हैं, तो रिमेनिंग होंगे आप लोग के पास 85,000.
ठीक है। 85,000 विल बी द रिमेनिंग अदर एसेट्स, जो कि कितने के लिए हैं, जिसके लिए अमाउंट पे करी है। रिमेनिंग अदर एसेट्स, रियलाइज्ड कैश, रिमेनिंग अदर एसेट्स से आपको जो कैश मिला वो कितने का मिला, 127,000 आपको कैश मिला। ठीक है। कैश आपको कितना मिला, 127, यानी जितने भी आपने 85,000 का जो भी अदर एसेट्स था उसको रियलाइज कराया, उसको हमने इवेल्युएट कराया। ठीक है, इसको हमने रियलाइज का मतलब कि हमने समझा, उसको रियलाइज करा के आपको कैश मिला 127, बिकॉज क्लोजिंग ऑफ योर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन गिव्स यू द कॉन्सेप्ट कि जितने भी चीज़ें होती हैं फर्म के अंदर मौजूद, उन सब की वैल्यूज़ को रियलाइज्ड कराया जाता है कि इसकी करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, हमने जो रिमेनिंग अदर एसेट्स थे उसकी वैल्यूज़ को रियलाइज कराया कि इसकी करंट वैल्यू क्या है, तो दैट विल बी योर 127,000 कैश। आपको कैश मिला 127,000, अदर एसेट्स आपके कितने के गए, 85,000 के। नाउ बैलेंस सी डी हेयर एज योर बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे जो बैलेंस आपके पास जो आ रहा है, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर आपका रियलाइजेशन है। ठीक है, उसकी अमाउंट क्या होगी, 127,000 माइनस 85,000, द अमाउंट विल बी 42,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। आपने कैश रिसीव कितना किया, 127, और आपके पास से अदर एसेट्स कितने चले गए, 85,000 के। ठीक है, क्योंकि 85,000 के ही बचे थे। Then we have next transaction, accounts payable were paid in full। क्वेश्चन में accounts payable कितने given है बेटे, 40,000 के accounts payable given है। ठीक है, और वो सारी उनकी पेमेंट हो गई है। आपके पास ट्रांजेक्शन क्या हुई, लाइबिलिटी जब पार्टनरशिप में मौजूद थी तो क्रेडिट पे थी, अब वो फर्म से जा रही है तो डेफिनेटली आपने उसको डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। देन वी हैव लिक्विडेशन एक्सपेंस वर पेड इन कैश। आपने एक एक्सपेंस किया है फर्म को क्लोज करेंगे। लिक्विडेशन का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ द फर्म। जब हम अपनी कंपनी को फर्म को क्लोज कर रहे थे तो हमने एक खर्चा किया और वो खर्चा था हमारे पास 6,000 रुपये का। यूजली हम एक्सपेंसेस के लिए जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास फर्म एग्जिस्ट करती है। जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं बेटे, एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री कब बनती है, जब आपकी फर्म ऑलरेडी करंटली एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन जब आप अपनी फर्म को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक्सपेंस का अकाउंट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है जो इस वक्त मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसका मतलब फर्म के अंदर अभी एक्सपेंस हो रहा है, जबकि हम तो अपनी फर्म ख़त्म कर रहे हैं, तो हम कोई नया अकाउंट जनरेट नहीं कर सकते। उसकी जगह यानी ये जर्नल एंट्री तो हमारी हो गई गलत। ठीक है, हम इसकी जगह दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, करेक्ट एंट्री बनाएंगे। हम कहेंगे रियलाइजेशन, एक्सपेंस की जगह लिखेंगे रियलाइजेशन, और आपको कैश कितना मिला, ठीक है, कैश कितना मिला 6,000। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन 6,000 एंड देन कैश विल बी 6,000। ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। मीन्स सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि आपने कोई नया नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पे जनरेट नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ कैश आपके पास से गया है एक्सपेंस करने पर, तो आपने उस कैश को तो रिकॉर्ड करना है क्योंकि वो आपके फर्म से जा रहा है, लेकिन कोई नया अकाउंट नहीं बना सकते। उस अकाउंट की जगह आप लोगों ने लिखना है रियलाइजेशन। क्लियर। अच्छा, देन उसके बाद वाली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, अच्छा, द बैलेंस पे टू द पार्टनर्स। अच्छा, अब उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पार्टनर्स को हमने पे कर दिया। आपने देखा हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिस्टर पी की रिकॉर्ड करी थी, सेकंड ट्रांजेक्शन अदर एसेट्स जो पे रिमेनिंग थे वो, देन आपने लायबिलिटी फुल पे कर दी है वो पेड इन फुल। फिर आपका एक लिक्विडेशन का एक्सपेंस हुआ जिसमें हमें कोई न्यू अकाउंट जनरेट नहीं करना, आपने लिखा रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, देन आपको अब आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन आपके पास स्टेप्स क्या थे, डू यू रिमेंबर द स्टेप्स। हमारे पास स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन क्या है, स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन बेटा नंबर 1 क्या था कि आपने सबसे पहले जनरल जर्नल रिकॉर्ड करना है, जनरल जर्नल। ठीक है, ऑफ ऑल द गिवन एडजस्टमेंट। जनरल जर्नल किस चीज़ का, जितनी भी आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उन सब के आपने जनरल जर्नल रिकॉर्ड करना है। ये जनरल जर्नल रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, लेजर ऑफ
किस चीज का लेजर बनाऊंगी मैं? वेट, यस, लेजर ऑफ रियलाइजेशन। लेजर ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का लेजर कैलकुलेट करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? देन यू विल कैलकुलेट द गेन और लॉस। गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाता है हमारे पास लेजर बनने से। फिर उसके बाद आप गेन और लॉस की जर्नल एंट्री बनाते हैं, एंड गेन और लॉस journal entry. Clear? And then in the end, what you will do, the fourth step, journal entry for the closing partner, to close all partners capital. Okay, journal entry to close all partners कैपिटल्स। या आप लोग को अच्छे से पता है कि जर्नल एंट्री सारे पार्टनर्स के कैपिटल को क्लोज करनी होती है, तो क्या बनती है? ऑल कैपिटल्स विल बी डेबिट एंड कैश क्रेडिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सारी एंट्री ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड हो गई हैं। मैं इसका आपको टी अकाउंट बनाना बताऊं। टी अकाउंट कैसे बनेगा? यू हैव टू मेक अ टी। ठीक है, एक हम टी बनाएंगे, अगर बन जाता है मुझसे, वेट फॉर अ व्हाइल। ये आपने एक टी बनाया, इसके टॉप पे लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन। फर्स्ट एंट्री में आपके पास कोई भी इस वक्त रियलाइजेशन नहीं आया है। सेकंड एंट्री में आपके पास रियलाइजेशन आया है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, एंड देन थर्ड में आपके पास कोई रियलाइजेशन नहीं है, देन फोर्थ में आपके पास रियलाइजेशन आया डेबिट में। तो हमारे पास 6,000 डेबिट में आ जाएंगे एंड 42,000 आपके पास क्रेडिट में आ जाएंगे। मैंने आप लोग के पास एक वर्ड की फाइल आपके साथ शेयर करती हूँ। This is, yes, this is your T account of the realization, जिसमें हमने हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 2 में 42,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ था, एंड नंबर 6 में आपके पास रियलाइजेशन आई है 6,000। देन हमारे पास डेबिट माइनस क्रेडिट करने से पता चला है कि हमारे पास जो पैसे कम हैं वो डेबिट साइड पे पैसे कम हैं। सो आपके पास बैलेंस सी डी आएगा डेबिटेड साइड पे 36,000। क्लियर? जब भी डेबिटेड साइड पे आपके पास बैलेंस सीडी आता है, वी विल राइट इट डाउन गेन ऑन रियलाइजेशन। इज दिस क्लियर? ओके, yes, hope so. This realization ledger is very much clear to you. You have to prepare the realization in simple steps. This, first of all, you have to record your journal in your adjustments. Then we have to follow the second step of the realization, and that will be the ledger and the T account of the realization. हमारे पास जिस transaction में realization क्रेडिट में आएगा, हमने उसको रियलाइजेशन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और जिस ट्रांजेक्शन में रियलाइजेशन डेबिट में आएगा आपने उसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास पैसे यानी रियलाइजेशन में कम किस साइड पे आ रहे हैं। डेबिट साइड पे होगा तो गेन ऑन रियलाइजेशन होगा, और क्रेडिट साइड पे होगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। ठीक है, नाउ अगेन आई प्रोसीड टूवर्ड्स द क्वेश्चन, वेट फॉर अ व्हाइल। Yes, yes, we have done till here. And we have done the 4 transaction. Number 1 transaction we have done this, number 2 we have done this, number 3 we have done this, and then number 4. After recording these 4 transactions, I will made one T account of realization, which I have just shown you. You have to make this T account, and then after recording the T account we will come to know कि हमारे पास gain हुआ है। gain की value कितनी आई थी बेटा? 36,000। and as in the question they have shown you that they are equal partners, हमने इनके ratios को highlight किया था ना, they are, their ratios is 1:1। so 36,000 should be divided equally। इसकी वर्किंग आपने शो करनी होगी वर्किंग की हेडिंग के साथ। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? अगेन 36,000, ये आपकी सेपरेट वर्किंग है। यू हैव टू पुट द हेडिंग ऑफ वर्किंग फर्स्ट। ठीक है, working, then 36,000 again. Yes, 36,000, then multiply 1 and then divided by 2. This is for the first partner, amount is 18,000। इधर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस में ये भी लिख सकते हैं कि ये पीस कैपिटल है,
Okay, and then same you have to do with the S capital, same बिल्कुल S के साथ भी कर दीजिएगा. सिर्फ नेम ऑफ द पार्टनर शुड बी चेंज. ठीक है, ये स्मॉल लेटर एस होगा. P's capital and S capital, what you have to do, 36,000 should be divided equally. So multiply by 1. 1 is the ratio of your partner and 2 is the sum of ratios of all the partners. ठीक है, so 2 आपके पास sum of ratio है, that's why 36,000 multiplied by 1 divided by 2 you will get the amount 18,000. Now this 36,000, as it is a gain on realization, so we will record the gain on realization in the debited side and partners capitals will be in the credited side, because whenever we have gain, the partners capital will be increased. Increase in the capital will be recorded in the credited side. Clear? Now I am proceeding towards your last journal entry, that will be the closing of your accounts. Closing of accounts. Yes, closing of accounts of the partners, such as we have to close the partners account. Now for the closing of partners account, what we have to do, we have to do the capitals debit and cash credit. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास मिस्टर पी का कैपिटल फॉर क्वेश्चन में कितना है. मिस्टर पी का कैपिटल क्वेश्चन में 50,000 है और एस का कैपिटल, मिस्टर एस का कैपिटल 40,000 है. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मिस्टर पी's capital is 50,000 in the question. He has taken over the cash of 15,000, जिससे उसका कैपिटल, यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन नंबर 2 में उसका कैपिटल क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, इसलिए हमने यहाँ से 15,000 माइनस कर दिए, प्लस 18,000 उसको गेन मिला है, तो दैट विल बी योर 53,000. क्लियर? देन मिस्टर एस का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 40,000 एंड देन गेन विल बी 18,000, जो कि सिर्फ मिस्टर एस को गेन मिला है उनके कैपिटल के साथ. The total amount is 53,000 and 58,000. The sum of these two is 111,000. Clear? Hope so it is clear to you. It is very easy question. Now what you people have to do, you people have to do the simple thing that you have to you can check your answer. Yesterday I told you that how you can check your answer. Your answers can be checked. You have the cash balance 127,000, then you have to, this is your debit cash, then you have to minus 40,000 because it is your credit cash, then you have to minus 6,000, it is also your credit cash, and then you have to minus 111,000. Okay, so your answer should be verified enough to get the value of the remaining cash and bank. This is the complete question which we have done today. It is very simple question. Hope so the you people get the main essence of the topic. Yes, to check this question, I would like to share with you that how you can check your question. You can check the cash value, which should be equal to the last journal entry. First of all, the question of the in question, the value of the cash is 30,000. It is debit side, so you have to add the debited values and less the credited values. Cash 30,000 is debit. You have to add 127,000 cash in 30,000, and then you have to less the amount of 40,000 cash, and then you have to less the amount of 6,000 cash, because these two are credited and this one cash and this cash is debited. You have to debit both the cash and less both the cash. ओके, सो जितने भी डेबिट वाले कैश हैं आपने उन दोनों को ऐड करके क्रेडिट वाले कैश को लेस करना है, आपका आंसर इक्वल आएगा क्लोजिंग अमाउंट ऑफ द कैश के. मैं आपको वर्किंग एकदम शो कर देती हूँ. क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 30,000 कैश एंड देन मैंने उसमें ऐड किया फर्स्ट जर्नल एंट्री का कैश 127,000, देन आई विल लेस द वैल्यू ऑफ कितनी थी अमाउंट, वेट 40,000. ओके, then I will less the amount of 40,000 minus 6,000. My answer should be equal to 111,000.
1000. This is the checking of your question of partnership dissolution. Okay, so this triple 1000 should be equal to your last journal entry जो कि आप partners की closing की बनाएंगे. So जब आपका cash का balance close equal आ जाएगा, verification हो जाएगी, it means आपने dissolution properly correctly solve किया है. Okay, this is the complete explanation. So this is the complete explanation of the topic partnership dissolution we have done in the today's class. This is the question problem number 3, journal entry we have discussed. And then in the end, we have discussed all the steps of the partnership. The points to remember I would like to discuss with you once again. Then realization should be treated as your balancing figure. Point number 2, we have to follow the steps of realization, journal, then leisure, and then gain and loss journal entry, and then you have to close the partner's capital. What you have to do, we have calculated the cash amount by adding all the debited cash and subtracting all the credited cash to get the amount of the closing journal entry, this one. So this amount of the cash should be equal to all the cash which is available, debit or credited in the firm. Then we have recorded the journal entry for the liquidation of the expenses is realization debit cash credit, but we should not record any other account. हम किसी भी नए account को expense को generate नहीं करते. So this is your last entry, and for the last entry you have to show the working of the capitals of all the partners. That partners capital should be debit, then less assets and add gain, so you will get the value of your capital. Thank you so much, my all students. Keep watching my videos, subscribe and like my channels. Allah Hafiz.